Good evening, welcome back. Let us resume chemical bonding. Up till now, we have learned that ionic bond is formed by transfer of electrons and covalent bond is formed by mutual sharing of one pair, two pair or three pairs of electrons. Okay, and when mutual sharing takes place between atoms having same electronegativities, then the covalent bond is called non-polar or ideal covalent bond, because none of the atom gets any charge. But if a covalent bond is formed between atoms having different electronegativities, then the more electronegative atom attracts shared pair of electrons more towards itself and gets partial negative charge, and other atom will get partial positive charge. Obviously, it will create polarity. Such a bond is non-ideal or polar covalent bond. And how this polarity is determined? I told you there is a term called dipole moment, which is used to measure polarity of a covalent bond. What is dipole moment? Dipole moment is the product of magnitude of charge, one of the charge, positive or negative. You know, when electron goes more close to one atom, it is becoming more far to other, means the magnitude of positive and negative charge will be same. So you can take magnitude of either positive or negative charge and distance between nuclei of those two ions. Okay, those two atoms which are forming a polar bond, distance between their nuclei is d, and E is magnitude of one of the charges. Okay, now magnitude of charges is of the order of 10 to power minus 10 electrostatic units. Okay, जो किसी आयन का पार्शियल चार्ज होता है वो 10 टू पावर माइनस 10 के रेंज का ऑर्डर का होता है. एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई इज इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, पिकोमीटर्स. You know, 1 angstrom equals 10 to power minus 10 meters, or you can say 10 to power minus 8 centimeter. So we can say that dimensions order of this dipole moment will be around 10 to power minus 18 electrostatic units centimeter. तो जब एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना, कटायन पे कितना पॉजिटिव आया, अनायन पे उतना ही नेगेटिव आया. उस पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड 10 टू पावर माइनस 10 ESU में होगा. एंड दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का होगा अप्रॉक्स. तो जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होएगा दैट विल बी 10 टू पावर माइनस 18, एंड 10 टू पावर माइनस 18 इज कॉल्ड d by, represented by d. For example, if I say that dipole moment of OH bond in water molecule is 1.84 d by, okay, and dipole moment of HCl bond is 1.04 d by. You can compare which bond is more polar. Which is more polar? Tell me, which is more polar? Obviously, this bond will be more polar than this bond. So we can use dipole moment to compare polarities of different polar covalent bonds. So this was about covalent bond. Now let us have a brief discussion about the third bond, which is coordinate or dative bond also.
coordinate or dative bond. A covalent bond is formed by mutual sharing, and a dative bond, coordinate bond, is formed by unmutual sharing. So this is formed by unmutual sharing of a pair of electrons between two atoms. Now, what does it mean by unmutual? Unmutual means a pair of electrons is contributed by one atom but shared by both the atoms which are forming bond. Okay, for example, we have H2O molecule. If we draw Lewis dot structure of H2O molecule, you see oxygen will be having 6 dots because it has 6 electrons in valence shell. Each H has 1 dot. Oxygen and H mutually share one pair to form one covalent bond. This is other covalent bond, mutual sharing. Now this H2O molecule, in this H2O molecule, each atom has octet of electrons. O has 6, 2 it has shared, it has got octet. H needs only 1 because its first orbit is outermost, 2 electrons. It has also attained stability. So in H2O molecule, all atoms are stable as per our basic 2 reasons. Why atoms combine? Number 1, to get noble stable configuration they have got. Now there is one more H atom, another H atom that was also having an electron. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसको भी शेयर करना था किसी के साथ. But what happened? It has lost this electron. इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, and by losing electron it has got positive charge. Now to attain stability it needs to have 2 electrons. अपना एक लूज कर दिया है ना, और अब इसको 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए. एंड सी इन दिस H2O molecule, this pair of electron is called bond pair. This is also bond pair, and these 2 pairs are non-bonding. So these are called lone pairs. So one of the lone pairs is donated by this oxygen atom to H+. This H+ is sharing this lone pair. Of course, it belongs to oxygen. Oxygen is also sharing, but H+ is sharing without any contribution. So this is called unmutual sharing. The atom which contributes is called donor, and which only shares without contributing is called acceptor. So in this case, H+ is acceptor, oxygen is a donor, and this bond is shown by arrow pointing towards acceptor. Okay, and we write it like this: HOH. These are covalent bonds, and this third bond is coordinate dative bond. It is formed by unmutual sharing, and we write H3O like this. This positive charge resides on this whole molecule, molecular species better say. So we write it like this. So one of these 3 bonds is coordinate, other 2 bonds are ionic. Okay, have you got it? Now let us take another example. We have ammonia molecule
NH3. If we draw Lewis dot structure of ammonia molecule, N has 5 electrons in outermost orbit, H has 1. So N has shared 3 electrons with 3 H atoms, 1 with each. So these 3 are covalent bonds, and this is a lone pair. If H plus comes here, this lone pair will be donated and the species formed will be NH4 positive. In NH4 positive, 3 H atoms are held with N atom by covalent bonds, and H plus ion is held by coordinate dative bond, and this species is called ammonium ion. This is ammonium ion. Okay, so this is third type of bond which is called coordinate. So it is a special type of covalent bond. We will learn about this more in next units, but till now we have to do only this. Now you can write Lewis dot structures of molecule. We have to learn one more bond also, which is metallic bond. But before doing that metallic bond, let us first do some practice to make Lewis structures of molecules. Okay, for example, let us draw Lewis dot structure of H2SO4 molecule. Okay, तो देखो H2SO4 molecule के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? एक तो सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 and 1 5, और 2 क्या हैं? हाइड्रोजन है, 5 and 2 7. तो टोटल 7 एटम्स हैं H2SO4 मॉलिक्यूल के अंदर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दीज 7 एटम्स आर स्टेइंग टुगेदर. ये 7 एटम 2H 1S और 4O मिलके क्यों रह रहे हैं भाई? क्या लॉजिक वही कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, है ना, और दूसरा कि सब ने अपना ऑक्टेट पूरा किया होगा. H ने अपने 2 पूरे कर लिए होंगे, सल्फर ने ऑक्टेट पूरा किया होगा, O ने क्या किया होगा. वी कैन शो हाउ, कैसे किया होगा. तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एटम गिनती में सबसे कम होते हैं उनको सेंटर में लिख लेते हैं. जैसे सल्फ़र 1 है, सेंटर में लिख लिया. जो सबसे ज़्यादा हैं वो रफली उसके अराउंड स्प्रेड कर देते हैं. ऑक्सीजन 4 है तो 4 O एटम हम ऐसे उसके अराउंड रफली रख लेते हैं. बाकी बचे H, वो भी ऐसे सिमेट्रिकली सिस्टमेटिकली कहीं रख देते हैं. अब आपको जो बताया लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी एटम की कैसे बनती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डॉट्स लगा दो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. H का 1 डॉट, ऑक्सीजन के 6 डॉट्स, इस O के भी 6 डॉट्स, इस O के भी 6 डॉट्स, इस O के भी 6 डॉट्स, इस H का भी 1 डॉट. सल्फ़र के कितने डॉट? Sulfur atomic number 16. If you remember modern periodic table, sulfur is a member of oxygen family. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. If oxygen is having 6 dots, of course sulfur will also have 6 dots, because all atoms of same group have similar electronic configuration, so they all will have same dots. तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, सबका 1 डॉट. सेकंड ग्रुप है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला, सबके 2 डॉट्स. बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, सबके 3 डॉट्स. कार्बन सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक 5, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम 6 डॉट्स. देन आ गए हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबके 5 डॉट्स. और लास्ट पे आ गई नोबल गैसेस,
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन सबके 8 डॉट्स, उनका तो ऑक्टेट पूरा ही है। दिस इज इट। तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ओके, तो इसके भी 6 डॉट्स। दिस इज इट। तो अब सबको देखते हैं कि ये सारे इकट्ठे क्यों बैठे हैं, सबका ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ। सल्फर के 6 डॉट सेंटर वाले के, एक इसने अपना शेयर किया इस O के साथ, एक शेयर किया इस O के साथ। 6 तो उसके अपने थे ही, एक पेयर शेयर कर लिया, एक पेयर शेयर कर लिया, 8 पूरे हो गए। सल्फ़र को तो अब किसी की दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। नाउ सी दिस ऑक्सीजन, इसके 6 अपने हैं, एक इसका शेयर हो गया, 7 हो गए, एक इसने H के साथ कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया। और H को तो 2 ही चाहिए थे, एक उसका था, एक उसका शेयर हो गया, स्टेबल। इस O ने इसके साथ शेयर कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया, ये H भी स्टेबल हो गया। तो ऑल दीज बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये चारों बॉन्ड कौन से हैं? कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में सल्फ़र का O के साथ, O का H के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड टोटल कितने बन गए हैं? ये 4 ना। अब इनको देखो, इस O को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 तो इसके अपने ही हैं, 2 मोर इट नीड्स, इसको भी 2 चाहिए। अब ये ऑक्सीजन इस सल्फ़र के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करना चाहता है, बट सल्फ़र नहीं चाहता। वो कहता है भैया मेरे तो पूरे हो चुके हैं, मैं तो और शेयर नहीं कर सकता। हाँ, ये इसके पास जो पेयर पड़ा है, ये कौन सा पेयर है? लोन पेयर, फ्री बैठा है, इट इज़ नॉन बॉन्डिंग, इट इज़ अवेलेबल। तो वो कहता है कि तू इसको शेयर कर ले, लेके नहीं जाना, क्योंकि फिर तो मेरे कम हो जाएंगे, मेरे को भी चाहिए, है ना, कि ये मेरी बुक है, तू पढ़ लिया कर, लेके नहीं जानी, मेरे को भी चाहिए। तो ऐसे ही ये जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है फ्री में, कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका कुछ भी, ओनली शेयरिंग। इसलिए हमने एरो डाल दिया इस तरफ। ऑक्सीजन इज एक्सेप्टर, सल्फर इज डोनर, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। तो अब तो आप समझ ही गए कि ये वाला बॉन्ड भी कौन सा बनने वाला है? कोऑर्डिनेट डेटिव। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं। एटम्स कितने हैं? 7। एंड आउट ऑफ दोज 6 बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स आर प्योरली कोवैलेंट एंड 2 बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट डेटिव। इज इट क्लियर? अच्छा, सोच के बताओ कि ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट? जस्ट गेस। हर चीज़ में केमिस्ट्री नहीं होती, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की भी होती हैं लाइफ में। सोच के देखो कि बराबर का हिस्सा डालना है, बराबर का शेयर कर रहे हैं। तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो किसी पार्टी में, तुमने भी पैसे डाले हैं, तुम्हारा भी हक होगा पूरा उसमें, है ना। और अगर तुम फ्री में जा रहे हो, तुम्हारी हालत कैसी होगी? सोच के बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट? अगर बॉन्ड डिसोसिएट होने वाले हैं तो पहले कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होएगा? इट इज़ अ सिंपल गैस। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीसीज आल्सो, कटायंस एंड अनायंस आल्सो। देखो, जैसे एक स्पीसीज है SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट आयन है। तो अगर हमको सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना हो तो देखो यहीं से ही बन जाएगा। कैसे? कि ये सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, ये S है, 4 O है, SO4 तो बना पड़ा। अगर इस H का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन कर ले और H को भगा दे पॉजिटिव बना के, है ना, ये H लूज़ हो जाए पॉजिटिव बन के,
अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाए तो इस O पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सिमिलरली ये वाला H भी लूज हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो इस O पे भी क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? SO4 2 नेगेटिव। तो ये SO4 2 नेगेटिव आयन की स्ट्रक्चर है ना। अब वो जो H पॉजिटिव है यहीं घूम रहा है, H पॉजिटिव है यहीं घूम रहा है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? जब वो यहीं बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक, है ना। ये भी कौन सा हो गया? आयनिक। लेकिन H जो है वो आयनिक बॉन्ड में आता है, वो शेयरिंग करता है। अगर वो वापस आता है ना तो फिर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये वाला पेयर म्यूचुअल शेयर हो गया, कौन सा बनेगा? कोवलेंट। हाँ, ऐसा करते हैं कि H प्लस के प्लेस पे अगर हम Na प्लस या K प्लस कर दें, K का एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, इसको दे दिया, अब ये कौन सा बॉन्ड होएगा? प्योरली आयनिक, क्योंकि पोटाशियम शेयर नहीं कर सकता। पोटाशियम के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट होता है, उसको ऑक्टेट चाहिए, तो एक वो शेयर नहीं कर सकता, H शेयर कर सकता है ना। तो हमने H प्लस के प्लेस पे अगर K प्लस लगा दिया तो फिर ये बॉन्ड प्योरली कौन सा हो जाएगा? आयनिक। तो H2SO4 में तो 4 बॉन्ड कोवलेंट थे, 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट थे, लेकिन अगर हम H के प्लेस पे K कर देते हैं, K2SO4, तो K2SO4 में कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड और एक तीसरी चीज़ और भी आ गई, आयनिक बॉन्ड। कितने कितने हुए? कोवलेंट हो गए 2, डेटिव हो गए 2 और आयनिक भी कौन से हो गए? 2। बात समझ में आई? तो ये सल्फेट आयन की भी इसी में से बन गई। अब आपकी बुक्स में बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जितने मर्जी वो बना बना के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अब एक चीज़ हमको पढ़नी है इसमें, फॉर्मल चार्ज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो देखो, जब एक मॉलिक्यूल बना है ना, जैसे H2O मॉलिक्यूल बन गया, अब H2O मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। टोटल तो H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अंदर जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर के इलेक्ट्रॉन को वहाँ रख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ रख दिया, तो ऐसा करने से कुछ चार्ज बन जाता है, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, थ्योरेटिकल जस्ट। तो वी कैन डिटरमिन दैट चार्ज, ओके। तो इफ़ वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज, वी कैन से द नेट चार्ज कैरिड बाय एन एटम in a molecular species, in a neutral molecule or in positive or negative molecule, collectively we call them molecular species, okay. So net charge carried by an atom in a molecular species may be called formal charge. It is not the actual charge, it is just given to make Lewis dot structure to complete their octet, okay. For example, let us make Lewis dot structure of ozone molecule. O3 is ozone, it is ozone, ozone is a gas, O2 is dioxygen, O3 is ozone. अब अगर हमको ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? देखो, O3 है, ऐसे रख लेते हैं। एक O के पास कितने डॉट्स होते हैं? अभी आपने बताया था 6। O की EC 1s2 2s2 2p4 होती है, सेकंड ऑर्बिट उसका आउटर मोस्ट होता है और 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने 6 डॉट्स उसके बना दिए ऐसे रफली, ठीक है।
अब 3 O एटम मिलके रह रहे हैं ओजोन के एक मॉलिक्यूल में, क्यों रह रहे हैं? ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा। अब ऑक्टेट पूरा कैसा हो रहा है देखते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, इसके 7 हो गए, इसके भी 7 हो गए, है ना। ये दोनों आपस में एक एक, इसका एक और इसका एक एक और म्यूचुअल शेयर कर लें, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए ना। तो इसको फिर वो बुलाएंगे ही नहीं, इन दोनों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ओजोन कैसे बन गया? इट इज़ अ क्वेश्चन ना। फिर O3 बना कैसे? इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ओजोन दुनिया में है। हम जो हो रहा है ना उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के लिए हम थ्योरियाँ बनाते हैं, उसी के लिए हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं, देन उसको प्रूव करते हैं, प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। तो हमने माना कि हो सकता है कि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर किया हो। अगर इसने ऐसा किया तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। 6 तो उसके अपने थे ही, 2 इससे शेयर कर लिए 8, एक इससे कर लिया 9, और इसके कितने हो गए? 6 तो अपने थे, एक उसने शेयर कर लिया, कितने हो गए? 7। इसके 9 है, इसके 7 है। तो हमने ये गैस लगाया कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर यहाँ बिठा दिया, है तो घर के अंदर ही, है तो मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। लेकिन जब इसका एक इधर गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन हमको पता है कि ओजोन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, ओजोन के मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं होता, बट जब हम ऑक्टेट पूरा करते हैं तो चार्ज आ जाता है। अब ये तो मैंने आपको समझाया बाकायदा कैलकुलेट करके कि ये देखो इसने लूज़ किया, इसने गेन किया, प्लस आया माइनस आया। लेकिन जल्दी जल्दी में अगर हमको बताना है कि कितना फॉर्मल चार्ज है तो वो हम कैसे बताएंगे? हम फटाफट क्या करेंगे कि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। हमको मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई MCQ आ गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर S एटम के ऊपर या O एटम के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज है, तो हमको इमीडिएटली विदिन 15 सेकंड्स आंसर देना है। जैसे सपोज़ यही क्वेश्चन आ गया, ओजोन का ही आ गया कि ओजोन के हर O के ऊपर क्या चार्ज है। हम क्या करेंगे? हम फटाफट दिमाग में ओजोन की स्ट्रक्चर लाएंगे कि एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, O के डॉट 6 होते हैं। इसको मैं बोल लेता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर O के ऊपर क्या चार्ज आएगा? एक फार्मूला याद कर लो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ ऑफ द S। ओके, दिस इज ए शॉर्टकट फार्मूला। FC इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S। What is V? V is valence electron. उनका नंबर। ओके, व्हाट इज L? L is लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की गिनती, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज S? आप समझ ही गए, S is shared electrons, shared electrons in shared pair. Okay, so V minus L minus S। हमको फटाफट बताना है कि ऑक्सीजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे क्या चार्ज है। 1 पे क्या चार्ज है? वी नो कि ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6। V हो गया माइनस L। अब देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 तो इसने शेयर किए हुए हैं, ये बाकी के जो 4 हैं इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पेयर में हैं, लोन पेयर 2 हैं, इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं। ओके,
-4, 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 इसने बॉन्ड बनाए हैं, है ना। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 का कर दिया हमने हाफ ऑफ S। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2s are 4, 2 और 4 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 0। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। इज इट ओके? नाउ 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर ऑक्सीजन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 माइनस L, इसके ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 1 2, ये तीसरा इसका, ये 2, है ना भाई। इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब 4 क्या हो गए इसके? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो ये 2 इसके क्या हो गए? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। 1/2 इंटू 2 किया, 2 2s are 1 हो गया, 4 5 नेगेटिव का हो गया, 6 पॉजिटिव का हो गया, क्या बचा? पॉजिटिव का 1। तो सेंटर वाले O के ऊपर क्या चार्ज है? +1। जब हमने ऐसे किया था प्रॉपरली, तब भी वो सेंटर वाला +1 नहीं आ रहा था, फार्मूले से भी वो +1 नहीं आ रहा है। ठीक है। नाउ O 3 नंबर का देखते हैं। अब तुम बताओ कैसे बनेगा ये? 3 नंबर में भी वैलेंस में तो 6 ही होंगे, माइनस लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 लोन पेयर हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 माइनस 6 माइनस एक बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 2 2s are 1, 7 हो गए नेगेटिव के, 6 हो गए पॉजिटिव के, क्या बचा? -1। तो तीसरा O जो है वो -1 का है। तो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है। वी नो algebraically it is 0, it is no charge. Ozone molecule has no charge. Formal charge is just a charge which is supposed to be there when we make Lewis dot structure. अब आपने खुद NO2 और NO ये 2 मॉलिक्यूल्स सॉल्व करने हैं, इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओ, देन इनका फॉर्मल चार्ज N का भी, दोनों O का भी, इस N का इस O का, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट नाउ, राइट नाउ, करो फटाफट। देखो NOO, NO2, NO, रफली हम ऐसे बना लेते हैं। अब NO2 में N के ऊपर कितने डॉट्स लगाएं? ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट काम करना है। N के बैलेंस में 5 होते हैं डॉट्स, 5 हो गए। O के बैलेंस में 6 होते हैं, रफली हमने उसको रख लिया ऐसे। सबका ऑक्टेट पूरा करना है, कैसे करेंगे? N को 3 चाहिए, 2 इसके साथ कर लिए, 1 इसके साथ कर लिया, है ना। तो N का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, राइट वाले O का भी हो गया, लेफ़्ट वाले O का नहीं हुआ। क्या करें अब? अगर लेफ़्ट वाला O एक और शेयर करता है N के साथ, तो N का एक बढ़ जाएगा, N के 9 हो जाएंगे। प्रॉब्लम आ गई ना। तो N के ऊपर एक अनपेयर्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O,
ये तो पंगा पड़ गया। ओ का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ओ का भी हो गया, इसके तो 9 हुए पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑड है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो n के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन NO2 मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है। यू कैन से इट इज़ ए लिमिटेशन, है ना। ऐसे और बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, देखो NO, अब NO में N हैज़ 5 डॉट्स, O हैज़ 6 डॉट्स। जब हम शेयर कराते हैं दो दो, O का ऑक्टेट तो सेटिस्फाई हो गया, N का भी नहीं हुआ, उसके 7 ही हुए हैं, है ना। So this is also a big question mark. There are so many examples in your books. You can try to solve this. Finish this topic today. Tomorrow we will recapitulate the 3 lectures and then we will finish metallic bond. After metallic bond, we will learn about geometries of molecules and many other concepts also. So this is all for today. Let us see you tomorrow. Till then, goodbye. Thank you.